Hello friends, welcome back. This is Sachin Pandey and I welcome you all once again in my YouTube channel. Dear friends, in previous video, we have studied the basics of grammar in which I have covered several important topics. So, if you have not seen my previous video of English grammar, please watch it, share it and subscribe. Because if you have not seen my previous video in which I have covered the basics of grammar, this video you will find difficult to understand. So I hope you will watch it. And today, in this video as well, I will cover several more important basics of grammar, several more important topics. Today, I have brought universal construction for you all. We will discuss universal construction of a sentence. Dear students, whenever you speak a sentence or write a sentence, every sentence has a rule, has a construction, has a universal construction that says, first of all, we always use a subject, and after the subject, verb auxiliary. Verb auxiliary बोलें तो helping verb. Both are same. There should not be any confusion between the two. Verb auxiliaries, they are also called helping verbs. Main verb and object. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पार्ट्स होते हैं. इनके अलावा भी और भी पार्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी हो सकता है. इनके बीच में प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शंस भी हो सकते हैं. Here I have written only important parts of a sentence और हम इन्हीं को आज डिस्कस करेंगे. So let's start. Every sentence has a subject. सबको पता होगा, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा. Now the question comes, what is a subject? अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, so what is a subject in a sentence? आपने देखा जरूर होगा बट समझने की शायद कोशिश नहीं की होगी कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड. सब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, सब एंड जेक्ट. अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ें, सो हियर कम्स द टू वर्ड sub and ject. Sub means somebody. Sub means somebody. Ject means do. So the definition that comes out, somebody, I hope you are getting me, somebody who does the work. Somebody who does the work is called subject. So the definition of subject is somebody who does the work. देखो बेटा, किसी भी चीज की डेफिनेशन जब आप समझते हो, डेफिनेशन अपने आप में देखो, डेफिनेशन इज नाउन. ये निकला कहां से? वर्ब से. आगे चल करके आगे वीडियोस में मैं आपको नाउन से हम वर्ब से कैसे नाउन बनाएं, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाएं, हम ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा. सो डेफिनेशन इज नाउन विच कम्स फ्रॉम द वर्ब डिफाइन. देखिए डिफाइन को अगर आप देखिए, डी और फाइन, देयर आर टू वर्ड्स, डी और फाइन. डी मींस गोइंग डाउन, फाइन मींस प्योरेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज की जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? उसका एसेंस, उसका जिस्ट आप लिखते हो. सो डिफाइन, डेफिनेशन की डेफिनेशन को अगर हम देखें, डी एंड फाइन, गोइंग डाउन एंड गेटिंग इट्स प्योरेस्ट पार्ट, गोइंग डाउन एंड गेटिंग इट्स फाइनेस्ट पार्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन. हम किसी चीज के जब जिस्ट को, एसेंस को निकाल करके बाहर रख देते हैं, इट बिकम्स डेफिनेशन. So I hope you have understood subject. Somebody who does the work is called a subject. Now let's move to another part, that is verb auxiliary.
There should not be any confusion. Verb auxiliary is also called helping verb. Helping verb. Now the question comes, why verb auxiliaries are called helping verbs? इनको हम helping क्यों कहते हैं? कोई तो रीजन होगा. इनको हमने helping verb नाम दे दिया, कुछ तो बात होगी, कुछ तो रीजन होगा. यस, रीजन इज देयर. पहली चीज, दे हेल्प द मेन वर्ब. ऑक्सिलरीज हेल्प मेन वर्ब. यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखो तो वर्ब ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब है. पहली चीज देखो बेटा, ये जो मेन वर्ब है एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. मेन वर्ब इसकी निगाह बहुत तेज होती है, बहुत तेज निगाह ऑक्सिलरी पर रखती है कि अगर तुमने अपना रंग बदला तो मैं भी तुरंत अपना रंग बदल लूंगी. कैसे? आपने अगर नोटिस किया हो, एक चीज और समझ लें. पहला मैंने कहा दे हेल्प द मेन वर्ब. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड, और इसको हम अगर ऐसे लिख लें, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंस. दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंस. That's why they are called helping verbs, because they help us to identify the tense. अगर भाई साहब auxiliaries ना हो, helping verbs ना हो, तो हम tense को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. कैसे? पहले तो आप ये डिफरेंस समझ लीजिए कि auxiliaries होती क्या है. हर सेंटेंस में आपने देखा होगा is, am, are, was, were, has, have, can, could, may, might, do, does, will, would, shall, should, ये सब auxiliaries ही होती हैं. अगर यही ना हो तो हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, जैसे आपने देखा डू और डज, तुरंत आप समझ जाते हो यस दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे किसी सेंटेंस में आपको दिखा इज, एम, आर, आपने तुरंत समझ लिया यस दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आपने देखा हैज और हैव, आप समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आपने देखा वॉज एंड वर, आपको लग गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आपको डिड दिख गया पास्ट इंडेफिनिट. आपने देखा विल, शैल, आप समझ जाते हो फ्यूचर की बात हो रही है. सो ऑक्सिलरीज जो होती हैं दे आर यूज्ड, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंस. और दूसरा, दे हेल्प मेन वर्ब. मैंने कहा कि मेन वर्ब हमेशा इस निगाह में बैठी होती है कि जैसे तुम अपना रंग बदलोगे मैं भी अपना रंग बदल लूंगा. जैसे देखो, किसी भी सेंटेंस में आप देखो ही इज गोइंग टू मुंबई, इज ऑक्सिलरी वर्ब है. इज लगा, गो ने, गो वॉज मेन वर्ब, गो ने अपना भी रंग बदल लिया, अपनी फॉर्म बदल रही. जो ये मेन वर्ब होती है ये अपनी फॉर्म को ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है. इज, एम, आर लगा, इसने खुद को आईएनजी फॉर्म में लगा लिया. जैसे यहां डू डज लग जाता है, ये खुद को फर्स्ट फॉर्म में या यस और ईएस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है. जैसे हैज, हैव लगा, ये खुद को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है. सो मेन वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑक्सिलरीज. अभी हम लोग आगे मेन वर्ब को भी पढ़ेंगे. अभी इतना समझिए, ऑक्सिलरीज व्हाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, बिकॉज दे आर यूज्ड, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंस. अब जरा हम इनके टाइप्स की बात कर लें, ये कितने टाइप्स की होती हैं. सो वर्ब ऑक्सिलरीज दे आर ऑफ टू काइंड्स. अगर हम इनकी बात करें, ऑक्सिलरीज आर ऑफ टू काइंड्स. प्राइमरी ऑक्सिलरीज, verb auxiliaries are of two kinds, primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries and modal auxiliaries. Now let us discuss one by one. What are primary auxiliaries?
primary auxiliaries are of three kinds: be, has and do. be, has and do. Under this be, बेटा बी जहां भी लगा हो, बी हमेशा किसका किसका सेंस देता है. देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर. बी अकेले इन चीजों का सेंस देता है. कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सेंटेंस दिया गया, दे ब्लैंक मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. दे ब्लैंक मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. ब्रैकेट में देता है बी. अब आपको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बी क्या है. तो मैंने कहा बी जो है इज का भी सेंस देता है, एम का भी सेंस देता है, आर का भी, वॉज का भी, वर का भी. तो आपको सेंटेंस और टेंस को, पहली चीज आप सेंटेंस को पढ़िए, एनालाइज करिए, टेंस को देखिए, एंड यू हैव टू यूज बी एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस. जैसा सेंटेंस का सेंस हो, जैसा टेंस हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज. दे ब्लैंक मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. अब देखिए यहां पर आर भी लग सकता है, वर भी लग सकता है. तो बी ने आर का भी सेंस दिया, वर का भी. आई ब्लैंक गोइंग टू आगरा. अब आई के साथ अगर बी लगाना हो तो आई के साथ क्या लगाओगे, एम या वॉज भी लग सकता है. सो बी हमेशा इज का भी सेंस देता है, एम का भी, आर का भी, वॉज का भी, वर का भी. आई होप यू आर गेटिंग मी. दूसरा हैज. हैज, हैव, हैड. ये तीनों हो गए, हैज, हैव और हैड. और थर्ड डू. डू इस कैटेगरी में आते हैं डू, डज, डिड. दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. अब अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज की, इसका अलग टॉपिक होता है मॉडल्स. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट अभी के लिए समझ लें मॉडल्स. व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स, मूड ऑल. मॉडल्स एक्सप्रेस मूड. कोई भी ऑक्सिलरी बेटा जो मूड को एक्सप्रेस करे, दे आर कॉल्ड मॉडल्स. होते बेटा ऑक्सिलरी हैं, जितने भी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, डू, डज, ये सब होते ऑक्सिलरीज ही हैं, बट डिवीजन इज डिफरेंट. मॉडल्स क्या करते हैं? दे एक्सप्रेस आवर मूड. जैसे देखो कैन को अगर हम ले लें, कैन है तो वर्ब ऑक्सिलरी, बट कैसा सेंस देता है? देखो, मूड और मैनर ऑफ स्पीकिंग. मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस मूड और मैनर ऑफ स्पीकिंग. इन व्हाट मैनर, इन विच मूड द सेंटेंस इज स्पोकन. कैन को देखिए, कैन को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखो, कैन पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है. कैन एक ही वर्ड है, एक ही ऑक्सिलरीज है, बट इट एक्सप्रेसेस सेवरल थिंग्स. इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. जैसे देखिए, पॉसिबिलिटी, ही कैन कम एट एनी टाइम. मैंने कहा ही कैन कम एट एनी टाइम, तो पॉसिबिलिटी, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी पहला. परमिशन, कैन ऑल्सो एक्सप्रेसेस परमिशन. परमिशन का मतलब यू कैन गो नाउ, यू कैन कम इन. ग्रांटिंग परमिशन, टेकिंग परमिशन, हर चीज को देखिए आप. कैन एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, परमिशन. अगला देखिए, अथॉरिटी. अथॉरिटी कैसे? ओनली आई कैन साइन ऑन दिस चेक. मैंने कहा ओनली आई कैन साइन ऑन दिस चेक. यहां पर कैन ने अथॉरिटी को एक्सप्रेस किया. अगला देखिए, कैपेसिटी. कैपेसिटी कैसे? इन दिस रूम 60 स्टूडेंट्स कैन सिट. 60 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस रूम, इन दिस हॉल. ये क्या है? इस रूम की कैपेसिटी है. तो हम कैन को कितने तरीके से देखिए हम यूज कर सकते हैं, जो मूड और मैनर को एक्सप्रेस कर रहा है. वेल, आई विल नॉट गो टू आगरा टुडे. आई विल नॉट ईट दिस एप्पल. ये क्या है? हमारा मूड है, हमारी डिजायर है. सो जितने भी हैं मॉडल्स, अगर हम मॉडल्स की बात करें तो वेल, वुड, शैल, शुड, कैन, could, may, might, used to,
accustomed to, used to, accustomed to, etc. They all are modal auxiliaries. And overall अगर हम बात करें साहब, overall they are called auxiliary verbs. They are called helping verbs. जितने भी हैं बेटा, is, am, are, was, were, has, have, can, could, may, might, do, does, did, will, would, shall, should, used to, accustomed to, ये सब जितने भी हैं, they are called auxiliary verbs. So I hope you have understood subject and verb auxiliary. Now let's move to the next topic, that is main verb. अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अभी मैंने कहा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये दोनों, एक दूसरे के अकॉर्डिंग खुद को बदलते रहते हैं। मेन वर्ब मैंने बताया बहुत चालाक होती है, इसी ताक में बैठी होती है कि जैसे ऑक्सिलरी ने अपना रंग बदला मैं भी अपना रंग बदल लूंगी। पहली चीज समझ लीजिए बेटा, मेन वर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा कि मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप। पहले तो इट हैज फॉर्म्स। मेन वर्ब जो होती हैं, जो मेन वर्ब्स होती हैं, इट हैज फॉर्म। कितनी फॉर्म? 3 मेन 3 फॉर्म्स एंड टोटल 5 फॉर्म्स। 3 मेन फॉर्म्स, टोटल 5 फॉर्म्स। कैसे? वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने जरूर सुना होगा। गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, कम, केम, कम। आपने इन फॉर्म्स को जरूर सुना होगा, यूज भी किया होगा। बट 2 और फॉर्म्स भी होती हैं, इन्हीं में आप देखो आईएनजी फॉर्म और यस और ईएस फॉर्म भी होती है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। ये 2 फॉर्म्स और होती हैं। अच्छा, दूसरा भी सबसे इजी मेथड है, हम मेन वर्ब को कैसे चेक करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। बेटा दुनिया का कोई भी वर्ड है, किसी भी वर्ड को आप ले लो और जिसकी मीनिंग में लास्ट में ना निकले, ना हिंदी में मैं बता रहा हूं, जिसकी मीनिंग में लास्ट में ना निकले वो सब मेन वर्ब्स ही होती हैं और उन्हीं की फॉर्म्स भी होंगी। चेक कर लीजिए, ना यकीन हो तो। गो मींस जाना, ना निकलना चाहिए, वर्ड की मीनिंग में ना निकलना चाहिए। ईट, खाना, रन, दौड़ना, कम, आना, राइट, लिखना, रीड, पढ़ना, गो, जाना, प्लक, तोड़ना, फॉल, गिरना, स्लीप, सोना, बीट, मारना या पीटना, अराइव, आना। आप देखिए इन सब की चेक कर लीजिए, इन सब की फॉर्म्स भी होंगी। फॉल, फेल, फॉलन, प्लक, प्लग्ड, प्लग्ड, इनकी आप फॉर्म्स भी आप बना सकते हो। सो सब्जेक्ट, वर्ब ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। I hope you all have understood this. Now let's move to another part, which is object. Another important part, object. We will discuss object. Let's move to the last part, which is an object. जैसा मैंने समझाया बेटा, subject. What is subject? Somebody who does the work. Sub and ject. Somebody who does the work is called subject. ठीक वैसे देखो object. Object is ob and ject. यहां पर भी 2 वर्ड, if you break this word into 2 parts, you will get ob and ject. What is an object? Over which, ob is over which the work is done. जो काम करेगा वो subject होगा, जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सिंपल समझना है। ओवर विच द वर्क इज डन, दैट इज ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने देखो, मैंने कहा द हंटर किल्ड अ लायन। हु किल्ड अ लायन? हु? हंटर। हंटर इज सब्जेक्ट। हंटर ने काम किसके ऊपर किया? लायन। हंटर ने किसको मारा? लायन को। सो लायन इज ऑब्जेक्ट। द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। हु इज ड्रिंकिंग मिल्क? बॉय। बॉय इज नाउन। लड़के ने काम किसके ऊपर किया? मिल्क। सो मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है।
द बॉय प्लग्ड अ फ्लावर, द बॉय प्लग्ड अ फ्लावर, हु प्लग्ड अ फ्लावर, बॉय, नाउन है, सब्जेक्ट है, किसके ऊपर काम किया, फ्लावर के ऊपर, सो फ्लावर इज ऑब्जेक्ट, सो ओवर विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में जरूर देखा होगा कि आपको दो ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, माई फादर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल ऑन माई बर्थडे, माई फादर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल ऑन माई बर्थडे। अब देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी भी ऑब्जेक्ट है, बाइसिकल भी ऑब्जेक्ट है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि विच वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू वेरी इजीली। पहले समझ लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ब। अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कि हाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ब एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर नाउन, इट ऑलवेज वर्क्स फॉर सब्जेक्ट। कुछ चीजें माइंड में रखिएगा, इन एवरी सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंपल्सरी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो सकता है, but direct object is mandatory, it is compulsory in a sentence। दूसरा बहुत सिंपल ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिखें बेटा, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को ढक करके चेक करिए, हाइड करके चेक करिए। जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से, जिस ऑब्जेक्ट को हाइड करने से मीनिंग इनकंप्लीट हो जाए, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को हाइड करके चेक करिए, जिसको हाइड करने से सेंटेंस की मीनिंग इनकंप्लीट लगे आपको, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा अपने आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे, अभी नहीं समझ में आया, देखिए जरा, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस आई हैव रिटन। शी गेव मी 10,000 रुपीज। शी, इट इज सब्जेक्ट, गेव, it is verb, main verb. There are two objects over here, me and 10,000 rupees. अभी मैंने कहा जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से मीनिंग इनकंप्लीट लगे, वही ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा हम दोनों ऑब्जेक्ट को हाइड करके चेक करते हैं। पहले देखो, 10,000 रुपीज को हम हाइड कर लेते हैं। 10,000 रुपीज को हाइड करते हैं तो सेंटेंस बचा, शी गेव मी व्हाट। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आया क्या? अब जरा हम मी को हाइड कर लें, शी गेव 10,000 रुपीज, उसने 10,000 रुपीज दिए। यानी देखो, इसको हाइड करने से, 10,000 रुपीज को हाइड करने से मीनिंग इनकंप्लीट थी, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा था मैंने बता दिया। एंड इट विल बिकम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस को भी जरा समझ लें। दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेज। दे इज सब्जेक्ट, ऑफर्ड इज मेन वर्ब, दे ऑफर्ड द गेस्ट ऑब्जेक्ट, मैनी डिशेज ऑब्जेक्ट। अब जरा दोनों ऑब्जेक्ट को हम हाइड करके चेक करें। दे मैनी डिशेस को हाइड कर दीजिए। दे ऑफर्ड द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को ऑफर, दे ऑफर्ड द गेस्ट व्हाट। आपके माइंड में अचानक क्वेश्चन आ गया व्हाट। अगर हम इसको हाइड कर दें, दे ऑफर्ड मैनी डिशेस, सेंटेंस बिकम्स कंप्लीट। यानी देखो, मैनी डिशेस को हाइड करने से सेंटेंस की मीनिंग इनकंप्लीट हो रही थी, सो यही क्या होगा, इट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसको हाइड करने से बच्चे मीनिंग इनकंप्लीट लगे, सेंस इनकंप्लीट लगे, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा वाला अपने आप में क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक और चीज समझ लें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के लिए काम करता है। देखिए,
कैसे देखो, शी गेव 10,000 रुपीज, देखो शी गेव 10,000, गेव देखो 10,000, क्या दिया उसने, गेव वर्ब था, मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ब, उसने दिया, क्या दिया 10,000 रुपीज। सो यहां पर देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क्स फॉर सब्जेक्ट, देखो शी गेव मी, देखो शी और मी देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसने मुझे, ये नाउन के लिए काम करता है। यहां देखो दे ऑफर्ड मैनी डिशेस, यहां ऑफर्ड देखो क्या ऑफर किया गया, मैनी डिश, लेकिन दे किसको रेफर, देखो यहां पर गेस्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ब बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क्स फॉर सब्जेक्ट। सो बहुत सिंपली आप समझिएगा, इफ यू आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, आप चेक कर लेंगे, उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आप दोनों को हाइड करके चेक करोगे एक बार। जिस ऑब्जेक्ट को हाइड करने से मीनिंग इनकंप्लीट लगे, सेंस इनकंप्लीट लगे, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंपल्सरी, एज आई सेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी इन अ सेंटेंस, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। So I hope universal construction is crystal clear to each and every one of you. Subject, verb auxiliary, main verb and object. In my next videos, we will discuss about main verbs in detail. Verb auxiliary को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। अभी मेन वर्ब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। टिल देन, goodbye, thank you so much. If you like my video, please share it, subscribe it and comment. Thank you so much.